Under the section of economic development of Pakistan, our next topic is the industrial sector. We will discuss industrial sector development in Pakistan in MCQs form. Under this chapter, that is industrial sector of Pakistan, we will discuss the following topics. That is importance of industrial development for Pakistan, causes of our industrial backwardness, and suggestions to improve industrialization in Pakistan. Now we will discuss which topics under the importance of industrial development in Pakistan. First important point under the industrial development is that development of allied and related sectors. With the industrial development, the other allied and related sectors are also developed. Agriculture development. With the development of industry in the country, the agriculture sector is also developed. Increase in employment opportunities, increase in outputs and income, and achievement of internal and external economies. The next point under the importance of industrial development is that industrialization brings social and economic change. Balance of payment deficit will be reduced, savings and investment will rise in government revenues and defense requirement. All of these points lie under the importance of industrial development in Pakistan. Now we will discuss causes of industrial backwardness in Pakistan, or what are the causes behind the industrial backwardness. Capital efficiency. Due to capital efficiency, industrial backwardness exists in the country. Capital low है तो investment low होगी, investment low होगी तो उसमें production भी low होगी. With the low production, national income will also at a lower level. So industry will not develop in this case. Lack of minerals, a lot of minerals which are not explored well, and due to lack of machinery, lack of technology, and lack of technical know-how, and that's why the industrial development does not become possible. Lack of industrial base. Controversial industrial strategies. The different political parties make different strategies in the industry for the industrial sector. Complicated official procedures for the investors in the country, and lack of infrastructure facilities. And the further points under the causes of industrial backwardness are poor quality of manufactured good products, lack of technical know-how, lack of consultancy facilities, and inflationary tendencies, and tariff structure, and the socio-political factors. All of these are the reasons behind industrial backwardness in the country. with मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन होती है लेकिन उनकी क्वालिटी लो होती है और टेक्निकल नो हाउ नहीं है, मतलब एक्सपर्ट्स नहीं है कि हाउ टू इम्प्रूव द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी से कंसल्टेंट नहीं है मुल्क में जो कि बता सकें कि बैकवर्ड इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, कौन से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ है जिनको अप्लाई किया जा सकता है इंडस्ट्रीज़ में. और इन्फ्लेशन टेंडेंसी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है कंट्री में जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होती है. और टैरिफ स्ट्रक्चर इस किस्म का है जो कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता बल्कि इंपोर्ट को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से कंट्री की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाती और इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती, उसकी प्रोडक्शन से जो रेवेन्यू है वो कम जनरेट होता है. एंड सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इंटरेस्ट में रहती हैं, वो कंट्री का कम ही सोचती हैं. सो ऑल ऑफ दीज रीजंस these are the causes behind industrial backwardness in Pakistan. What are the suggestions to improve industrialization in Pakistan? There are some suggestions given below. That exploration of minerals should be accelerated. The minerals, oil, gas and petroleum, जो different kinds of minerals in different areas of Pakistan, उसकी exploration को accelerate करना चाहिए with the help of new technology, new machinery and new technical know-how. And इस तरह की different techniques से हम ज़्यादा minerals को explore कर सकते हैं, जिसकी वजह से minerals के एक्सप्लोर होने से इंडस्ट्री का इनपुट ज़्यादा हो जाएगा, उनको इनपुट मिलेगा तो वो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे.
इन्फेंट इंडस्ट्रीज शुड बी प्रोटेक्टेड। इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि डोमेस्टिक होती हैं, जो कि कंट्री में लगती हैं, मतलब अगर वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, अगर वो न्यूली स्टार्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको प्रोटेक्ट किया जाए बाय प्रोवाइडिंग देम डिफरेंट फैसिलिटीज़, मतलब टैक्स कंसेशन दे दिया जाए या उनको इनपुट सस्ता दे दिया जाए। इसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ उनको फैसिलिटीज़ दे के उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है टू डेवलप दी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ इन द कंट्री। प्राइवेट सेक्टर शुड बी इनकरेज टू टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया जा सकता है कि वो मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें बाय गिविंग द डिफरेंट फैसिलिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट, मतलब उनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ इस किस्म की दी जाएँ कि वो विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकें। Make favorable economic policies of the country and establishment of industrial states in the country. These are the various suggestions which can improve the industrialization backwardness in Pakistan. Now we will discuss MCQ. Number one MCQ is that industrialization provides all of the options are the right one. It can provide greater output, rise in national income of the country, and more employment will be more employment. Employment will exceed with the help with the advancement of output. With employment लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा. So all of the options are the right one. Which of the following statement is true? B is the right option, that industrial development promotes agriculture sector and agriculture sector promotes the industrial sector. Both sectors provide each other. Both sector promotes each other. So B is the right option. What is economies of scale? B is the right option, that when more units of a good or service can be produced on a larger scale, yet with fewer input cost, economies of scale are said to be achieved. मतलब प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो रही है लेकिन उसकी यूनिट कॉस्ट जो है, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो फर्म या वो सिचुएशन उसको हम कहते हैं कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो सी वो अचीव हो गई है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन लेकिन कम यूनिट कॉस्ट के साथ। What is external economies of scale? B is the right option. External economies of scale are business enhancing factor that occur outside a company but within the same industry. मतलब external economy में ये है कि ये within the same industry, out company के outside होती है लेकिन ये within the same industry होती है. So B is the right option. बिज़नेस को इन्हांस करती है ये, मतलब एक प्रोडक्ट को प्रमोट करती है लेकिन ये एक कंपनी से आउटसाइड होती है लेकिन वो विद इन सेम इंडस्ट्री, मतलब वो प्रोडक्शन की टाइप सेम रहेगी लेकिन वो कंपनी से बाहर हो सकता है। Internal economy of scale, B is the right option. An internal economy of scale measures a company's efficiency of production. That efficiency is attained as a company improves output when the average cost per product drops. तो वो एक तरह की इकोनॉमी ऑफ स्केल वाली बात होगी कि ये किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर करती है, वो प्रोडक्शन में कितनी एफिशिएंट है। मतलब एफिशिएंट इस सेंस में होनी चाहिए कि वो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो लेकिन कॉस्ट जो है वो कम ही रहनी चाहिए। दैट विल बी नोन एज इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल दी गई है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टूवर्ड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी को अटेन करती है। एग्जांपल दी गई है शुगर इंडस्ट्री की। कैसे? इफ शुगर इंडस्ट्री विल डेवलप इन द कंट्री द फॉलोइंग एडवांटेजेस विल राइज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो क्या हो जाएगा कि विद द डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन द कंट्री जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। शुगर इंडस्ट्री विल डिवाइज द वेज एंड मेथड्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो इस तरह के मेथड्स और टेक्निक्स डिवाइस कर लेगी जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस द क्लिप बोर्ड, हार्ड बोर्ड एंड अल्कोहल, मतलब वो जो वेस्ट हो जाएगा शुगर का वो क्लिप बोर्ड एंड हार्ड बोर्ड वगैरह में यूज़ हो जाएगा। Other industries will be set up near the sugar industry which manufacture the necessary machinery and other implement required by the sugar industry. And other one is sugar cane growing area will increase and market demand for labor will increase. ये देखते हैं सारी advantages हमें इस तरह किसी भी इंडस्ट्री से गेन हो सकते हैं और शुगर इंडस्ट्री के केस में ये एग्जाम्पल दी गई है। Sixth question is industrialization is furnished with both forward linkage effects and backward linkage effects. C is the right option.
फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट्स बेसिकली क्या है कि व्हेन अ स्मॉल बिजनेस हैव टू फॉरवर्ड देयर अनफिनिश्ड प्रोडक्ट टू अनदर कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, देन इट इज़ नोन एज अ फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट। मतलब एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है जो कि किसी स्मॉल बिजनेस के थ्रू प्रोड्यूस हुई है, मतलब वो फिनिश्ड नहीं है, लेकिन वो किसी और कंपनी को दी जाती है कि उसको चेंज किया जाए इनटू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग टू चेंज इट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, देन इट इज़ नोन एज अ फॉरवर्ड लिंकेज। Is how the industrialization bring social and economic changes. मतलब ये all of these are the right options. मतलब with the help of various techniques we can change the social and economic setup. That it puts to an end the narrow and intimate life of agrarian structure. मतलब किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंट्री जिसमें कि अगर इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हो पा रही, जिसका मतलब ये कि उसमें एग्रीकल्चर तो लाजमी होगी, तो इससे क्या होगा इंडस्ट्री से कि एक एग्रीरियन स्ट्रक्चर का एक जो किस्म का लाइफ स्केड्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड लोगों के आउटपुट इट ब्रॉडन्स द आउटलुक ऑफ द पीपल बाय चेंजिंग देयर एटीट्यूड्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टाइम इंक्रीजेस, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर डेवलप्स एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इंक्रीजेस। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से काफ़ी सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस इन द कंट्री में लाई जा सकती हैं। सो एफ इज़ द राइट ऑप्शन। How the industrialization can reduce balance of payment deficit? By A, B, and C are the right option. Due to these ways, balance of payment deficit can be reduced by industrialization. वो क्या है कि production of import substitutions will reduce the dependence on imports. मतलब कि मुल्क में ही ऐसी कोई चीज़ें बना लें कि हमें बाहर से import ना करनी पड़े, जो कि बाहर की जो imports है उसका substitutes बना लें, जिसकी वजह से वो country से ही हम उसको यूज़ कर सकें, हमें बाहर से import ना करना पड़े। Exports will increase by increasing the industrial manufactured products. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी कंट्री में तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज करेगी, जो उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री की एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगी। एंड सी, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स विल क्रिएट ट्रेड और बैलेंस में ट्रेड आ जाएगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी रिड्यूस हो जाएगा। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर दी राइट वन। इंडस्ट्रियलाइजेशन विल लीड टू, इसमें ए, बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन। इसे इनकम, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट सारी सब इंक्रीज करेंगे। जो डी एंड ई है जो उनसे वो राइट ऑप्शन नहीं है। सो ए, बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन फेसेस कैपिटल एफिशिएंसी ड्यू टू विच रीजंस? मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें कैपिटल एफिशिएंसी को फेस करना पड़ता है, उसकी रीजंस क्या हैं? ऑल ऑफ द गिवन रीजंस आर द राइट वन। कि लो सेविंग द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, सोसाइटीज़ कंजम्पशन ओरिएंटेड, मतलब लो कंजम्पशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, सेविंग लो है उनकी। एंड इन्वेस्टर्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन्स, मतलब उनको जितना उनको लोन चाहिए वो मिलता नहीं है, या अगर मिलता भी है तो उसकी पॉलिसीज़ बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। इन हाई इंटरेस्ट रेट डिस्करेज द स्मॉल बिजनेसमैन, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर बिजनेस करने का सोचता भी है तो उसका इंटरेस्ट रेट कंट्री का इतना हाई होता है कि वो ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाता है। एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी डिस्करेज द फॉरेन इन्वेस्टर्स। और अगर फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का सोचता है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इतना लैक करता है पाकिस्तान में, और पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाता है। सो दीज आर द वेरियस रीजंस ड्यू टू विच डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन फेसेस कैपिटल डेफिशिएंसी। Which of the following infrastructure facilities are absent in Pakistan? पाकिस्तान में कौन सी एजेंसी फैसिलिटी एब्सेंट है, मतलब जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, इन्वेस्टर डिस्करेज हो जाते हैं। ये थोड़ी सी उसकी टाइप्स दी गई हैं। रोड्स फ्रॉम हार्बर टू इंडस्ट्रियल एंड बिग सिटीज़ आर रिड्यूस्ड इन नंबर, मतलब रोड्स इतनी कम है, मतलब जो कि बिग सिटीज़ की तरफ जाती हैं, मतलब अगर हैं तो सही नहीं है। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फेल टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, शॉर्टेज ऑफ गैस एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, और गैस एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बहुत शॉर्टेज है। सो ऑल ऑफ दीज फैसिलिटीज़ आर लैकिंग इन पाकिस्तान। What are the complicated official procedures for the investors? पाकिस्तान में पुराने कानून बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी हेक्टिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है अगर वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो। उनमें क्या क्या है जी? टैक्स मशीनरी इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर द इन्वेस्टर्स। टैक्स डिपार्टमेंट उनसे मतलब उसके कई ऐसे ऑफिशियल प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स मतलब काफ़ी उनको टाइम वेस्ट हो जाता है उनका। इन्वेस्टर्स डोंट गेट लाइसेंसेज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स एंड इम्पोर्ट सर्टिफिकेट्स ईजीली, उनके सारे सर्टिफिकेट
शेयर्स उनको इजीली नहीं मिलते, वो ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुजरने के बाद मिलते हैं. एंड इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड गैस कनेक्शंस आर हार्डली ऑब्टेन विदाउट एनी लिंक. अगर उनका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में या टेलीफोन या गैस डिपार्टमेंट में किसी से लिंक नहीं है तो उनको बहुत मुश्किल से कनेक्शन मिलता है. अगर मिलता भी है तो काफ़ी अरसे बाद जाके मिलता है. सो दीज आर द वेरियस कॉम्प्लिकेटेड ऑफिशियल प्रोसीजर्स इन पाकिस्तान ड्यू टू विच इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान are normally discouraged to invest in the country. What are the reasons behind lack of technical know-how in Pakistan? हम टेक्निकल नो हाउ की कमी क्यों है? मतलब उसकी वजह ये कि आर प्रायोरिटीज आर नॉट इन फेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैन में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती. बाहर की कंट्रीज़ में लोगों के जैसे कहते हैं टेक्निकल नो हाउ उनकी जो मैन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब वो एक नॉलेज पे उनका काफ़ी होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, जो कि पाकिस्तान में लैक करती है काफ़ी हद तक. टेक्नोलॉजी इज़ प्रैक्टिसिंग इन आर कंट्री आर क्वाइट आउटडेटेड एंड न्यू टेक्नोलॉजी कम यूज़ की जाती है. एंड फॉरेन कंट्रीज़ आर हार्डली प्रिपेयर टू गिव अस मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि मोर एडवांस टेक्नोलॉजी बाहर की कंट्रीज़ में आती हैं वो पाकिस्तान में उसी टाइम नहीं आती, वो काफ़ी अर्से बाद जाके आती हैं, जिसकी वजह से टेक्निकल नो हाउ की पाकिस्तान में यूजुअली कमी रहती है. सो ऑल ऑफ द रीजंस आर द राइट वन. टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इज इम्पोर्ट बायस्ड, मतलब ये इम्पोर्ट को फेवर करता है, एक्सपोर्ट को फेवर नहीं करता. वाई द टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान इज इम्पोर्ट बायस्ड की वजह क्या है? क्योंकि देयर आर रिड्यूस टैरिफ वॉर्स अगेंस्ट द इम्पोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स. मतलब जो कि कंज्यूमर गुड्स इम्पोर्ट होती है पाकिस्तान में, उसके जो उनके अगेंस्ट जो टैरिफ है वो बहुत कम रखा जाता है. इट डज नॉट इनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान की जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज उनको ये इनकरेज बिल्कुल नहीं करता, बल्कि जो बाहर से इम्पोर्ट होती है उसको इनकरेज करता है. लेस रिस्ट्रिक्शंस एंड रिड्यूस टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट्स आर द बिग हिंड्रेंस इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जब इम्पोर्ट पे रिड्यूस टैरिफ होगा और रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो उसकी रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है. सो दिस सिस्टम, ड्यू टू दिस सिस्टम जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट में बैकवर्ड एक एलिमेंट रह जाता है. सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द राइट वन. How the exploration of minerals can be enhanced in the country? Or A, B and C are the right one. The greater facilities should be provided to domestic as well as foreign companies. अगर चाहे वो domestic है या foreign company है जो कि explore करना चाहती है minerals को पाकिस्तान में, उसको greater facilities provide करनी चाहिए. And companies seeking minerals should be encouraged by providing cheaper credit availability, modern technology and know-how, and more industrialization. More industrialization होगी तो more input required होगा. जब more input required होगा तो गवर्नमेंट को ये एहसास होगा कि हमें और मिनरल्स चाहिए, तो मोर इनपुट चाहिए, तो वो उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए कुछ ना कुछ वेज एंड टेक्निक्स यूज़ करेंगे. सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर द राइट वन. हाउ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री बी प्रोटेक्टेड, मतलब किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है अपनी कंट्री को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पाकिस्तान. बाय इम्पोजिंग द हाई टैरिफ वॉल अगेंस्ट द इम्पोर्टेड गुड्स एंड फर्म्स प्रोड्यूसिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट्स बी प्रोवाइडेड विद चीपर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज ऑन द इम्पोर्टेड मशीनरी. मतलब ये दीज आर द वेरियस वेज बाय विच डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री कैन बी प्रोटेक्टेड. डी इज द राइट ऑप्शन. How we can improve the industrialization of the country? B is the right option by encouraging private sector. मतलब प्राइवेट सेक्टर का इसका काफ़ी इसमें रोल प्ले कर सकता है अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज करें. तो अगर डिस्करेज करेंगे तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते. उनको इनकरेज करने से ही पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आ सकती है बाय देयर इन्वेस्टमेंट. 20 क्वेश्चन इज व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन. मतलब प्राइवेटाइजेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं या इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स राइट हैं. ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर द राइट वन अबाउट प्राइवेटाइजेशन. दैट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर. मतलब वो गवर्नमेंट की होगी पहले, लेकिन वो फिर प्राइवेट सेक्टर को उसको ओनरशिप चली जाएगी. एंड द गवर्नमेंट सीजेस टू बी द ओनर ऑफ द एंटिटी और द बिजनेस. और वो जो बिजनेस है वो फिर गवर्नमेंट की ओनरशिप में नहीं रहेगा. एंड द प्रोसेस इन विच पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज टेकन ओवर बाय अ फ्यू पीपल. मतलब वो पब्लिकली वो पहले कंपनी होगी तो लेकिन वो फ्यू पीपल उसको एक प्राइवेटली तौर पे उसको परचेज कर लेंगे. सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द राइट वन इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. So give your feedback in the comment section below, and you can share my video and can subscribe my channel as well.